Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 6 of alcohols, phenols and ethers in chemistry. In the previous lecture, we were discussing about the physical properties of alcohols and phenols, and we discussed about the boiling points and the solubility trends. So first, I'll give you a quick recap about these trends, and then we will move on to the chemical reactions. So starting with the boiling point, we discussed that when the number of carbon atoms increase, the boiling point increases because it involves the increase in the van der Waals forces of attraction. When the branching increases, and here we are talking about the compounds which have the same number of carbon atoms. Matlab, branching, we will look forward to the branching only when two compounds have same number of carbon atoms. So when the branching increases, then the boiling point will decrease. And for comparing the alcohols, ethers and the hydrocarbons, we will see that whether these compounds they have comparable molecular mass or not. Okay. So if these compounds they have approximately the similar molecular mass, then alcohol will have the highest boiling point, and then we will have ethers, and then we will have hydrocarbons. And why is this so? Because alcohols they have intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रेंथ होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं, इंटरेक्शन वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, एंड देयरफॉर you need more energy as compared to the other compounds to break them. Now coming to solubility. So the solubility of alcohols in water is mainly because of the formation of hydrogen bonds with the water molecules. So that means जो alkyl या फिर aryl groups are there in the alcohol, they are hydrophobic in nature. ठीक है? And when the size of this alkyl or aryl group will increase, that means solubility will decrease. मतलब जब size of the alkyl group बड़ा होगा, मतलब जैसे अगर number of carbon atoms बढ़ रहे हैं, that means solubility will decrease. Now we come to the chemical reactions, and we discussed that there are two possibilities. Either the OH bond will break in the alcohols, or either the CO bond will break. ठीक है? So we were in the first category, that is OH bond is being broken down. There we also came across the acidic strength of alcohols and phenols. So I'm just writing about the acidic strength. So you just have to remember one thing कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, मतलब हम OH बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. ठीक है? तो whenever the polarity of this bond will increase, the acidic strength will also increase. मतलब पोलैरिटी मतलब ये जो बॉन्ड होगा O और H का वो वीक हो जाएगा. पोलैरिटी बढ़ेगा मतलब O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. ठीक है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. मतलब H will be easily released. H रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन. तो उसे बोल देते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी है या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है. ठीक है? तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है. ठीक है? अब वी विल टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द alcohols first. So what happens is in the case of alcohols, 1 degree or the primary alcohols they are most acidic. Most acidic मतलब जो उनका H plus the capability of releasing H plus or a proton is more. बहुत आसानी से H plus या प्रोटॉन रिलीज होगा. ठीक है? एंड टर्शरी इन द केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज लीस्ट. और ऐसा क्यों होता है? द रीजन बिहाइंड दिस ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट. मतलब आई मतलब इंडक्टिव. प्लस आई इज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप. ठीक है? तो एल्काइल ग्रुप पे क्या होता है कि इट हैज अ केपेबिलिटी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? तो अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल में बस एक एल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री अल्कोहल में दो हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल में यू हैव 3 एल्काइल ग्रुप्स. तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा.
एंड आई टोल्ड यू जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, दिस इज द रीजन। रीजन भी याद रखना है, ठीक है। अल्कोहल, नाउ दिस वाटर is more acidic as compared to alcohol. ठीक है, now talking about the phenol. Phenols are more acidic than water and alcohol. और ऐसा क्यों होता है? This the main reason is the more stability of the phenoxide ion as compared to the alkoxide ion. अब alkoxide ion कैसे बनता है? See, these ions they form due to the ionization. मतलब जब ROH आयनाइज होगा तो वो RO माइनस और H प्लस बनाएगा, और जब फिनॉल आयनाइज होगा तो वो PHO माइनस, दिस इज अ फेनॉक्साइड आयन, और H प्लस बनाएगा. सो बिकॉज दिस फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, एंड व्हाई इज दिस स्टेबल? बिकॉज ऑफ द delocalization of the negative charge. Phenoxide ion में resonance हो रहा होगा, there is a conjugation of the negative charge of the electrons. There is delocalization of negative charge because of which the phenoxide ion is more stable as compared to RO minus. और जब ये स्टेबल है इसका मतलब है कि इसका आयनाइजेशन, फिनॉल्स का आयनाइजेशन आसानी से होगा, जल्दी होगा, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल. ठीक है, तो फिनॉल्स के केस में भी यू हैव सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स. मतलब फिनॉल जरूरी नहीं है कि सिर्फ OH ग्रुप लगा हो, मे बी कोई और ग्रुप लगा हो. तो देन व्हाट विल बी द ट्रेंड इन दैट केस? यहाँ पे भी हमें वही देखना है जो हम अल्कोहल्स में देख रहे थे, क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज देयर, EWG, electron withdrawing group is there at the ortho or the para position, then we will say that the acidic strength जो है वो increase हो रहा है, acidity is increasing. And if we have electron donating group, मतलब जो electrons release कर रहा है, in that case acidity will decrease. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द अल्फा कार्बन विल डिक्रीज, एंड देयरफॉर जो OH बॉन्ड होगा ये वीक हो जाएगा, इट विल बिकम मोर पोलराइज्ड, एंड दैट इज व्हाई द एसिडिटी विल इंक्रीज, H प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो हर जगह अल्कोहल में भी लगेगा और फिनॉल में भी लगेगा. तो जनरल ट्रेंड कैसे लिख सकते हैं? इन द केस ऑफ फिनॉल्स we can write it as, suppose this is phenol and this is the electron withdrawing group. ठीक है, यही शॉर्ट फॉर्म याद रखना, electron withdrawing group. इसका acidity is more as compared to unsubstituted phenol, and this is even more acidic as compared to this electron donating group substituted phenol. ठीक है, ये पैरा पोजिशन पे भी हो सकता है, द ट्रेंड विल बी सेम. हाँ, मेटा पोजिशन पे इफ सम ग्रुप इज अटैच्ड देन इट विल नॉट हैव दैट इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट जो रेजोनेंस का जो इफेक्ट होता है दैट इज ओनली एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन, क्योंकि वहीं पे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो दिस विल बी द जनरल ट्रेंड इन केस ऑफ phenol. Now we will do some few examples just to make this thing more clear. So, okay, now you are giving two compounds, 2-chloroethanol and ethanol. मतलब this is chlorine, CH2, CH2OH. This is 2-chloroethanol and you are given ethanol. Now you have to tell that which out of these two which will be more acidic. ठीक है, तो whatever, like similarly as I told you that what we see is कि electron density is either increasing or decreasing. ठीक है, तो you have to see कि जो भी ग्रुप लगा है वो कैसा ग्रुप है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, तो क्लोरीन एज यू नो ये इट शोज द -I इफेक्ट, मतलब
नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव मतलब इट इज अ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इट विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट विल इंक्रीज द पोलैरिटी। तो मतलब दिस विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल। ठीक है, नाउ वी विल कम टू फेनॉल। तो हियर यू आर गिवन थ्री कंपाउंड्स। एक है नॉर्मल फेनॉल, मतलब अनसब्स्टिट्यूटेड फेनॉल। देन यू हैव ऑर्थोक्रेसॉल। क्रेसॉल होता है व्हेन यू हैव फेनॉल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप विद द मिथाइल ग्रुप। ऑर्थो मतलब एट द ऑर्थो पोजीशन। एंड देन यू हैव ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोफेनॉल। तो नाइट्रो मतलब फेनॉल है तो OH, और नाइट्रो मतलब NO2। ठीक है, सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो व्हाट विल बी द एसिडिक ट्रेंड हियर, मतलब किसकी एसिडिटी विल बी मोर, यू हैव टू अरेंज दीज। तो अगेन एज आई टोल्ड यू दैट सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ग्रुप लगा है वो कैसा ग्रुप है, उसका नेचर कैसा है। तो दिस NO2, इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस यू नीड टू रिमेम्बर कि कौन से ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, सो यू शुड मेक अ लिस्ट, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल दोज ग्रुप्स। एंड दिस CH3, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये तो आपको भी पता है कि ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। नाउ ये वाला ये जो चीज है, दिस ट्रेंड वी विल सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक है, C आएगा। फिर A आएगा बिकॉज ये नॉर्मल अनसब्स्टिट्यूटेड फेनॉल है, और फिर D आएगा। ठीक है, एंड दिस इज राइट डाउन, दिस इज द एसिडिटी ट्रेंड। ठीक है, so maybe if you are given a question which has many compounds, and in that list different types of alcohols are there, water is there, phenols are there, तो आप क्या करना है कि you see this thing, no, ये पूरा, ये जो ये वाला देखो आप, इसमें सबसे पहले फिनॉल्स है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले फिनॉल्स को अरेंज कर लो। फिनॉल्स को अरेंज इस वाली लिस्ट से करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है। ठीक है, इस लिस्ट से अरेंज करने के बाद यू विल राइट वाटर एंड देन अल्कोहल। तो अल्कोहल में यू विल सी दिस लिस्ट, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू अरेंज दिस, मतलब पहले फिनॉल, फिर वाटर एंड फिर अल्कोहल, दैट्स इट। So this was all about the physical properties. Now we were doing the chemical reactions, right? So we'll continue that. So leverage of OH bond. The first reaction that we did was the reaction with metals. ठीक है, उसमें जो reaction था, we used the reaction with sodium, aluminium and sodium hydroxide. ठीक है, तो this was reaction with metal. Then today we will do esterification. ठीक है, तो as the name says, ester, that means this kind of reaction involves the formation of esters. ठीक है, तो what happens is alcohols and phenols, they react with the carboxylic acids or acid chlorides and acid anhydrides to form the esters. Now what are these actual compounds? अगर आपको नहीं पता है इनका स्ट्रक्चर, तो I am going to draw the structures. So this is, see, this is for both. Esterification is applicable to both the alcohols and phenols, और मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, नाउ इसमें रिएजेंट कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, RCOOH। ठीक है, देन यू हैव एसिड क्लोराइड, उसका होता है RCOCl। दिस इज एसिड क्लोराइड। यू मस्ट नो द नेम ऑल्सो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं। देन
we have acid anhydride, R C O O C O R. This is acid anhydride. ठीक है? So these are the reagents or the reactant in the case of esterification reaction. Now we will start with the uh, reactions. We will write down the general reaction. So I am writing this AR slash R just to signify that this is applicable for both the alcohol and phenol. This is the reaction with carboxylic acid. This is a reversible reaction because this is a double arrow. So this is a reversible reaction and the product is ester plus water. ठीक है? तो क्या हो रहा है कि देखो ये जो एसिड है मतलब ऐसा है COOH. ठीक है? तो क्योंकि इसमें क्या है OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मतलब कि व्हेन यू आर रिएक्टिंग दिस एसिड विद अल्कोहल तो ये वाला जो एसिड है पूरा और यू हैव दिस अल्कोहल. सपोज करो ये R प्राइम है RCOH. ठीक है? वी हैव ROH. ये अल्कोहल है. ठीक है? तो क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड मतलब ये जो अल्कोहल का जो OH बॉन्ड है ना ये ब्रेक करेगा. ठीक है? ये ब्रेक करेगा और ये जो OR वाला ग्रुप है ठीक है ये यहाँ पे आके लग जाएगा. तो क्या बन जाएगा R प्राइम COOR. मतलब ये वाला OH विल चला जाएगा और ये वाला H रिमूव हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे. बस इतना हो रहा है. क्या हो जाएगा R प्राइम CO. एसिड का OH चला गया एंड ये अल्कोहल का OR आ गया. ठीक है? तो ये क्या है ये ईस्टर है. तो इन दिस व्हाट हैपेंस इज जो अल्कोहल का OH है ठीक है. सी दिस मे बी कंफ्यूजिंग बिकॉज इन द एग्जाम्स यू में आस्क कि कौन से रिएजेंट का बॉन्ड जो है वो टूट रहा है. ठीक है? वो क्या करेंगे आई हैव सीन सो मेनी क्वेश्चंस जिनमें वो क्या करते हैं कि वो H को मार्क कर देते हैं. मतलब सपोज करो इसको स्टार से मार्क कर दिया. ठीक है? और अब वो पूछेंगे कि कौन सा बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है. तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कौन सा कार्बन कहाँ से आया है या फिर कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आया है. ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ठीक है? तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है उसका बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है. कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में C और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. CO बॉन्ड ब्रेक होगा और OH एज अ होल चला जाएगा. इन द केस ऑफ अल्कोहल O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा और H रिमूव होगा. ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है कि जो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है that is of the alcoholic group, alcoholic compound. Next, coming to the other reaction. This is acid anhydride. ठीक है? We are writing it this way. इसमें भी we will get the same product. इसमें भी the bond that is breaking is the OH bond of the alcohol. And here the other product will be different. This is acid chloride. And here this reaction happens in the presence of pyridine. Product is same. But the other product is different. Esters तो सब में बनेंगे मतलब जो सेकेंडरी जो बाय प्रोडक्ट्स है दे आर डिफरेंट इन ऑल द केसेस. ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना कि इसमें वाटर है इसमें एसिड है ये एसिड है दूसरा एंड दिस इज HCl. ठीक है? नाउ द रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द एसिड एनहाइड्राइड जो फर्स्ट टू रिएक्शंस है दे आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है? तभी यहाँ पे H प्लस लिखा है. देखो H प्लस इज फॉर द एसिड. ठीक है? प्रोटॉन. तो concentrated sulfuric acid and these are the reversible reactions. Whereas the third reaction, the reaction with acid chloride,
is carried out in the presence of pyridine which is a base. तो यहाँ पे बेस होना चाहिए, कोई pyridine होना चाहिए just to neutralize the HCl. तो ऐसा क्या होगा कि जब हम बेस यूज करेंगे और ये एसिड बन रहा है, तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होके न्यूट्रलाइज कर जाएंगे एंड दिस HCl विल बी यूज्ड अप, जिससे कि क्या होगा कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा सबने. दिस प्रिंसिपल सेज कि व्हेनेवर यू आर रिमूविंग अ बाय प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियसली, जैसे ही वो बन रहा है आपने उसे रिमूव किया, तो द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ देखो ऊपर वाले रिवर्सिबल है, लेकिन जो थर्ड वाला है वो दैट विल ऑलवेज मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रलाइजिंग थिंग विच इज हैपनिंग. ठीक है, एंड वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन or one very important reaction of this kind is this process is known as acetylation. ठीक है, तो क्या होता है कि this is a salicylic acid, this is COOH and this is OH. ठीक है, तो याद रखना ये जो चीज है दिस इज सैलिसिलिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए. ठीक है, मे बी इन द एग्जाम दे कैन आस्क विदाउट गिविंग यू द स्ट्रक्चर. ठीक है, you will react this with acid anhydride in the presence of acid. तो क्या बनेगा? ईस्टर. ईस्टर कहाँ बनेगा? COOH वाले जगह पे नहीं बनेगा. ईस्टर विल फॉर्म एट जहाँ पे अल्कोहल लगा है. ठीक है, ईस्टर वहीं पे बनेगा जहाँ अल्कोहल लगा हुआ है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OCOCH3 and other acid. Now this compound is known as aspirin. ठीक है, this compound is has so many industrial uses. It is so important that it is used medically also. ठीक है, फॉर मेडिकल पर्पसेस के लिए भी बहुत जगह पे यूज होता है, सम एज सम ड्रग काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज द esterification reaction. Now we will go move on to the other category of the reaction which involves the cleavage of the carbon oxygen bond. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे we will write it as cleavage of carbon oxygen bond. ठीक है, now see this these reactions that we are going to discuss just now, they are not applicable for phenol. ठीक है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आई एम राइटिंग इट हियर इन अल्कोहल. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. जैसे एस्टरिफिकेशन था वो दोनों के लिए एप्लीकेबल था, बट अभी जो वी विल डू द रिएक्शन दैट आर ओनली फॉर द अल्कोहल. ठीक है, द फर्स्ट रिएक्शन इज विद हाइड्रोजन हेलाइड. So this kind of reactions we have also done in the chapter haloalkanes. ठीक है, तो what happens is the alcohols है ना, they react with the hydrogen halide which is HX to give the haloalkane or alkyl halide and water. ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल और हमने खूब सारे एग्जांपल्स भी किए थे उस टाइम. नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू शुड नो इज द ल्यूकास टेस्ट. ठीक है, this is LUCAS, Lucas test. This is a laboratory test to identify the class of alcohol. मतलब कि अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, तो होता क्या है, वी यूज दिस रिएक्शन इटसेल्फ. इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले देखो कि लुकास रिएजेंट क्या होता है. द रिएजेंट दैट इज यूज्ड हियर इज concentrated HCl plus ZnCl2. ठीक है, तो दिस इज अ लुकास रिएजेंट concentrated HCl in ZnCl2. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद द लुकास रिएजेंट. ठीक है, दे आर सॉल्युबल, वो मतलब सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, बट द हैलाइड्स दैट आर फॉर्म्ड दैट आर इमिसिबल.
ठीक है। तो अल्कोहल को जब हम लोग लुकास रिएजेंट में डालेंगे, हम रिएक्ट करवाएंगे, तो दे विल बिकम सल्यूबल, बट उनके जो हैलाइड्स होते हैं दे आर नॉट सल्यूबल, दे आर इमिसिबल, सो दे प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन द सोल्यूशन। ठीक है, मतलब वो डिजोल्व नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, एंड यू विल सी सम ब्लर्ड काइंड ऑफ थिंग, सम वाइट ब्लरिश टेक्सचर इन द सोल्यूशन। दैट इज बिकॉज जो हैलाइड बना है दे आर इमिसिबल। ठीक है, so I am writing down the important points. Alcohols तो soluble होते हैं and halides are immiscible in Lugaz reagent. ठीक है, तो what happens is जब alcohol HX से react करेंगे, मतलब HX यहाँ पे क्या है, HCl, तो वो क्या बनाएंगे, RCl, मतलब हेलो एल्केन बनाएंगे, क्लोरो एल्केन। ठीक है, तो क्या होगा कि बिकॉज वी नो दैट टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट। टर्शरी अल्कोहल्स के केस में क्या होता है कि बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे कैन फॉर्म द हेलाइड्स वेरी इजीली, दैट इज व्हाई टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। मतलब जैसे ही आपने अल्कोहल्स को लुकास रिएजेंट में डाला, यू विल सी द टर्बिडिटी इमीडिएटली, while in the case of primary alcohol, because they are least reactive, so you will not see turbidity at the room temperature। ठीक है, तो मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो लुकास टेस्ट क्या करता है, ये हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट, जो भी हमें अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है, वी विल पुट दैट अल्कोहल इन द लुकास रिएजेंट। तो क्या होगा कि दैट अल्कोहल विल रिएक्ट विद HX, दैट विल फॉर्म RX। ठीक है, तो इफ यू सी द टर्बिडिटी, ओके, व्हाट हैपेंस इज, सी देयर आर थ्री possibilities after adding the Lucas reagent. If you observe the turbidity immediately or instantly, जैसे ही आपने डाला तुरंत आपको टर्बिडिटी दिखाई पड़ी, इसका मतलब है कि वो टर्शरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल था। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, सेकेंड केस कैन बी, यू सी द टर्बिडिटी बट आफ्टर सम टाइम, मतलब थोड़ी देर वेट किया आपने, फिर आपको यू कैन ऑब्जर्व टर्बिडिटी, दैट विल बी द 2 डिग्री अल्कोहल। एंड थर्ड केस कैन बी नो टर्बिडिटी, आपने काफी टाइम वेट किया बट उसके बाद भी आपको टर्बिडिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, सो दिस इज द लुकास टेस्ट इन डिटेल। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, reaction with phosphorus halide. This also we have covered in the haloalkane chapter, but I will also mention all the reactions here just to make you all remember this. PX3, this is phosphorus trihalide. ठीक है, ये अल्कोहल है, ये phosphorus trihalide है। When this reaction happens, you get the haloalkane and H3PO3। ठीक है, and mind that this X जो है, that is either chlorine or bromine, nothing else। ठीक है, now we have alcohol and PCl5, this is phosphorus pentachloride, and यहाँ पे you get chloroalkane, POCl3 and HCl। Then you have another reaction that is ROH, and यहाँ पे you have red phosphorus with X2। और ये यहाँ पे क्या होता है कि red phosphorus is reacted with the halogen and in situ formation होता है phosphorus halide का।
इन सिटू मतलब जब रिएक्शन हो रहा है उसी पॉइंट पे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, you will get Rx. And mind that X here is either bromine or iodine. अच्छा, ये तो phosphorus halide हो गया. एक और reaction we did with alcohol, that was the most preferred reaction, and that was a reaction with thione and chloride. This is the most preferred reaction because the two byproducts that are forming here are gases and they are easily escapable. So we don't need any purification method for removing RCl. ठीक है? So this is the reaction with phosphorus trihalide. The next thing we have dehydration. The third reaction in this category is dehydration. Dehydration मतलब the removal of water molecule. ठीक है? D मतलब removal और hydration, hydrate मतलब water. तो alcohols undergo dehydration to form the alkenes. क्यों? क्योंकि एक कार्बन से OH निकलेगा, एक कार्बन से H निकलेगा, and then you will get a unsaturation there. अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा. ठीक है? एंड दैट इज दिस हैपेंस ऑन द ट्रीटमेंट विद द प्रोटिक एसिड. मतलब एसिड जो कि प्रोटॉन देगा, अच्छा एसिड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4. ठीक है? तो क्या होता है कि यहाँ पे एल्कोहल्स दे सिंपली रिएक्ट विद द एसिड और डिहाइड्रेशन से दे विल फॉर्म एल्कीन. ठीक है? एसिड कौन सा होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है, H2SO4 और H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है? और ये तो एसिड हो गया, और कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, लाइक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और अल्यूमिना. ठीक है? तो ये रिएजेंट्स है जिनके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है जिंक क्लोराइड और अल्यूमिना. ठीक है? नाउ वी विल मूव ऑन टू द रिएक्शंस. जनरल रिएक्शन. जनरल रिएक्शन सी इज, ये सी है, दिस इज H, this is OH. The reaction is happening in the presence of acid and heat, and you will get alkene, double bond C plus, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन है तो वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, H2O. ठीक है? नाउ दिस इज अ जनरल रिएक्शन. ठीक है? फॉर द प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है? यहाँ पे जो मैंने बनाया है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल. So let's do a example. We have C2H5OH, primary alcohol. You require H2SO4 at the high temperature 443 Kelvin. ठीक है? क्या बनेगा? इथेन, CH2, CH2 and water. ठीक है? नाउ एज आई टोल्ड यू दैट जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. अभी हमने व्हेन वी वर डिस्कसिंग, सो द टर्शरी अल्कोहल्स दे आर मोस्ट रिएक्टिव. ठीक है? तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, बिकॉज वो इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, सो वी रिक्वायर द so these primary alcohols they require the harsh condition for the reaction to happen. वहीं पे if we do the similar kind of reaction using the secondary and the tertiary alcohol, so they will happen in milder condition. ठीक है? तो ये 1 डिग्री था, अभी आप देखना कंपेयर करना, ये 1 डिग्री है. सपोज वी डू अ सिमिलर रिएक्शन इन 2 डिग्री alcohol. दिस इज OH, दिस इज अ secondary alcohol. ठीक है? So in the laboratory it is observed that it requires a milder condition. 85% H3PO4, मतलब बिल्कुल प्योर एसिड नहीं यूज किया है यहाँ पे, 85% यूज किया है, एंड यू विल गेट
alkene plus water. ठीक है. Now if you have 3 degree alcohol, tertiary alcohol, then the tertiary alcohols are so reactive that even 20% of the acid, मतलब 20% of H3O4, H3PO4 use करेंगे, and that too at a even lesser temperature, 358 Kelvin पे. Then also we can get a product आसानी से. Water. ठीक है. So when you compare these three reactions, so you can see that 1 degree में you were using a pure मतलब concentrated H2SO4 use कर रहे हैं, and that too at a very high temperature. For tertiary alcohol, you are using just 20%, बहुत ही dilute solution use कर रहे हैं acid का, and that too at a very less temperature as compared to the primary one. ठीक है. So that means कि secondary and tertiary alcohols they are reactive and they require milder condition. These two dehydration के लिए they require milder condition. ठीक है. So if we talk about the relative ease of dehydration of alcohol, मतलब कि अल्कोहल्स किस तरीके से डिहाइड्रेट होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है. रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन. So you can simply say that 3 degree other that I mean they are the most reactive. तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होगा या फिर बहुत आसानी से डिहाइड्रेशन होगा. Then we have 2 degree and then we have 1 degree. So the dehydration is easiest in the case of tertiary alcohol. ये तो हो गया ट्रेंड. अब बात आती है कि वाई ऐसा होता क्यों है कि 3 degree ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन. व्हाट इज द रीजन. ये तो हो गया हमने लेबोरेटरी में देखा कि इनको होने के लिए कम मतलब माइल्डर कंडीशन चाहिए होती है सेकेंडरी और टर्शरी को. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये हम वी विल सी दिस यूजिंग द मैकेनिज्म. वी विल स्टडी द मैकेनिज्म इन डिटेल. सो द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन. ठीक है. So the first step is the formation of protonated alcohol. Formation of protonated alcohol मतलब जब you are reacting an alcohol in the presence of acid, right? तो यहाँ पे क्या होगा. सपोज करो हम इथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. वी आर टेकिंग इथेनॉल हियर एंड ये जो एसिड होता है ये करता क्या है. ठीक है. वाई इज द प्रेजेंस ऑफ एसिड वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये जो एसिड होगा ये हमें प्रोटॉन देगा, और ये जो प्रोटॉन है दैट विल गेट अटैच्ड टू द अल्कोहल टू फॉर्म द प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ठीक है. तो स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का. एक और H लग जाता है आगे एंड दिस इज प्लस, और एक लोन पेयर चला जाता है. मतलब वन वन लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. ठीक है. सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा सेकंड स्टेप. एंड व्हाट विल हैपन कि ये जो H2O है, ये जो ओवरऑल ये पूरा जो ये देख रहे हो ऐसा, ये पूरा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है. एंड वी विल बी लेफ्ट विद द कार्बोकेटाइन. दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2 एंड यहाँ पे प्लस, और साथ में क्या निकला वाटर.
तो वाटर पूरा रिलीज हो जाता है, ये वाला वाटर H2O रिलीज हो गया, और दिस कार्बोकेटाइन दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन एटम। तो ये जो चीज है ये क्या है, कार्बोकेटाइन। ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3 सेज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और वो कैसे होगा, बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है। ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसमें हम लोग क्या करेंगे, H+ निकाल देंगे। H+ एलिमिनेट हो जाएगा तो वी विल बी लेफ्ट विद द एल्कीन। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, दिस कार्बोकेटाइन एल्कीन प्लस H+, प्रोटॉन हैज बीन एलिमिनेटेड। ठीक है। So these are the three steps which are involved in the formation of alkene from the alcohol, मतलब dehydration में। तो now you can understand कि why tertiary alcohols are the most reactive। क्यों, क्योंकि you can see कि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, whenever there is a formation of carbocation, because we know that 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है that follows 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दे आर मोस्ट स्टेबल, देन इज 2 डिग्री एंड देन इज प्राइमरी। ठीक है। तो जब टर्शरी अल्कोहल होगा तो वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है। और क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि दैट इज वाई टर्शरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड द इंटरमीडिएट स्टेप। ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि टर्शरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है। So this was about the dehydration reaction. Now coming to the last category of the reaction in this in the second category, मतलब जिसमें C और O bond is being broken down. ठीक है, and that is oxidation. That is the fourth subcategory, oxidation of the alcohol. ठीक है। तो अच्छा, because this involves a lot of theory, so I will divide it into three parts just for the sake of clarity and for you to understand it properly. तो हम लोग इसे पढ़ेंगे, like we will study it accordingly, like primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol। ठीक है, तो उससे क्लियर ज्यादा हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होता कैसे है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वी हैव अल्कोहल, दिस इज ROH। तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है कि OH बॉन्ड ब्रेक होता है और CH बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पे एक C होगा सपोज, ओके। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। तो ये वाला OH बॉन्ड ब्रेक होता है और ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है। ठीक है। तो C डबल बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ना दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑक्सीडेशन को हम लोग डीहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज डी मतलब रिमूवल और हाइड्रोजनेट मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ से रिमूव होगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा, इसका मतलब H2 इज बीइंग रिमूव्ड। इस वजह से इसे बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई मीन इससे पहले वी स्टडीड अबाउट डिहाइड्रेशन एंड दिस इज डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है एंड डिहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म क्या है। नाउ कमिंग टू द, लाइक आई टोल्ड यू कि वी स्टडी इट इन 3 कैटेगरीज। ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है कि सपोज दिस, whenever we will oxidize it, मतलब जब भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा ना,
It will always form an aldehyde. ठीक है, RCHO बनता है. ठीक है, on further oxidation it will form a RCOOH acid, carboxylic acid. ठीक है, तो primary alcohols on oxidation they first form aldehyde and on further oxidation they form carboxylic acid. ठीक है, ये होता है प्राइमरी अल्कोहल में. नाउ अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे लाइक KMNO4, I will write everything. Strong oxidizing agent like KMNO4, this is potassium permanganate, or K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो बिकॉज दे आर सो स्ट्रॉन्ग, तो बीच में एल्डिहाइड से रुकेगा नहीं रिएक्शन. द रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड एंड इट विल डायरेक्टली फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो whenever we will use strong oxidizing agent we will get carboxylic acid directly. ठीक है, aldehyde नहीं बनेगा. now if we want the reaction to stop at aldehyde, मतलब अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो but कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने, I mean the reaction will stop at the aldehyde position, मतलब हम लोग aldehyde को isolate करना चाहते हैं. if we want the reaction to stop at the intermediate step, मतलब we want to isolate aldehyde, देन क्या होगा, हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे. तो जनरली फॉर दिस पर्पस वी यूज, अभी भी हम प्राइमरी अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, वी यूज CrO3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड एंड इट विल गिव RCHO. ठीक है, तो दिस इज वन वे अगर हम चाहते हैं कि हमें एल्डिहाइड मिले. अनदर बेटर वे जो कि हमें बेटर ईल्ड देती है, अच्छी खासी ईल्ड देती है एल्डिहाइड की, दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ PCC. PCC, what is this? I'm writing down the name. It is a bit complex. Generally name नहीं दिया रहता है. If it is asked somewhere, वो short form में use करते हैं and that is PCC. You need to remember chlorochromate, pyridinium chlorochromate. ठीक है, तो this is a complex of chromium trioxide with pyridine and HCl. मतलब chromium trioxide with pyridine and HCl. इसका कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर में. बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सो कॉम्प्लेक्स वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज whenever alcohols are being oxidized using PCC, हमेशा we will always get the aldehyde. ठीक है, हमें कभी भी एसिड नहीं मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा. ठीक है, तो these two reagents CrO3 और PCC ये हमें aldehyde दे देते हैं. ठीक है, this was about the primary alcohol. Now the second case is the secondary alcohol. ठीक है, now secondary alcohols on oxidation they always give ketone. क्यों? क्योंकि वहां पे दो अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो वो C डबल बॉन्ड O बनेगा. ठीक है, तो जनरल रिएक्शन कैसा हो सकता है? सपोज वी हैव टू ग्रुप्स, क्योंकि वो सेकेंडरी है तो ये एक R यहाँ पे आ गया, एक R प्राइम यहाँ आ गया और दिस इज OH. तो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे. जनरली CrO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो क्या होगा, ये CH वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाले जो C में H लगा हुआ है ये वाला बॉन्ड टूटेगा और OH वाला बॉन्ड टूटेगा और यहीं पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा. सो दिस इज अ कीटोन. तो सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन दे ऑलवेज गिव कीटोन. नाउ द थर्ड केस इज टर्शियरी अल्कोहल. They do not undergo oxidation. Do not oxidize. ठीक है,
मतलब दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, लेकिन इफ यू आर यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमने पहले देखा KMnO4 जो है, दैट इज एट दैट टू एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे, हार्श कंडीशन पे आप रिएक्शन करवा रहे हो कि सम ऑफ द CC बॉन्ड में ब्रेक, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, एंड दे में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मतलब जिस अल्कोहल से हम बना रहे हैं हमें उससे नहीं मिलेगा, बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, एंड वी कैन गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा क्योंकि KMnO4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, KMnO4 से हमेशा हमें एसिड मिलता है, so we will get a mixture of carboxylic acid, and these acids will have less carbon atoms as compared to the alcohol। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल्स का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एंड वी नो कि जब भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा तो वी नीड टू सेपरेट, जो भी हमें चाहिए उसको सेपरेट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो जनरली टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं करवाया जाता है। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर टेक्निक to for the oxidation purpose, and this involves the use of copper। तो इसमें क्या होता है, in this technique vapors of alcohol, जो भी हमारा अल्कोहल है, they are passed over heated copper at 573 Kelvin। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि if you are using 1 degree alcohol then you will form aldehyde। ठीक है, इस टेक्निक से मतलब अगर कॉपर पे द वेपर्स ऑफ अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, एंड इफ दैट अल्कोहल इज 1 डिग्री, यू विल गेट अ एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे ऊपर हमें मिला था। इफ इट इज 2 डिग्री देन यू विल गेट अ कीटोन। ठीक है, मैकेनिज्म वही है, कीटोन बनेगा वैसे ही डबल बॉन्ड लगाकर। ठीक है, एंड इफ इट इज 3 डिग्री, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा बल्कि डिहाइड्रेशन होगा, मतलब OH और H निकल जाएगा, वन वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड एंड वी विल गेट एन एल्कीन। ठीक है, तो 1 और 2 डिग्री के लिए वी कैन से कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। इस केस में एल्कीन बन रहा है, एंड दैट टू बाय डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ठीक है, इसमें H2 रिमूव होता है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटेगरी of where category of reactions where CO bond is being broken down in the case of alcohols। ठीक है, तो एक बार जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहला क्या पढ़ा हमने, प्राइमरी। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, आइदर एल्डिहाइड, और फर्दर कराएंगे तो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं मतलब KMnO4, या फिर K2Cr2O7, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वी विल डायरेक्टली गेट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम लोग माइल्ड यूज करते हैं मतलब CrO3 यूज करते हैं, या फिर और PCC यूज करते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो वी विल गेट एल्डिहाइड, मतलब रिएक्शन विल स्टॉप एट एल्डिहाइड पोजिशन, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमरी का। प्राइमरी के केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ सेकेंडरी, 2 डिग्री में you will use CrO3 and you will get ketone always। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइमरी करेंगे वो स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं या फिर वीक यूज कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज गेट अ कीटोन। 3 डिग्री में होता ही नहीं है।
ठीक है। सो these were the three categories जिसमें कि हमने ऑक्सीडेशन को डिवाइड किया था। ठीक है, तो उसे याद रहता है, एंड whenever in the reactions you will get the type of oxidizing agent। ठीक है, and the different reactions they may ask कि different oxidizing agents are being used and what will be the product। तो you need to remember। और ये PCC तो बहुत जगह पूछा जाता है। This I have seen in a lot of examinations, this PCC, because this is not usual or it is not a free मतलब ये बहुत ही रेयर कंपाउंड है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है। इस वजह से whenever you see PCC with alcohol, just remember कि एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और एल्डिहाइड बनेगा, दैट्स इट। So this was all about this category, and in the next lecture we will carry on with the chemical reactions of phenol। ठीक है, there are many named special reactions of phenol। So this was all for today. Thank you.